ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਰੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DSR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ DSR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ DSR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਖਰੋੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ DSR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। मैं डॉक्टर GP उपाध्याय, प्रोफेसर सॉइल साइंस, माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब। आज किसान भाइयों से बातचीत करते हुए इस विषय पर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं कि धान के बीज की सीधी बिजाई खेत में और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इस विषय पर भी जानकारी किसान को मिलेगी। जैसा कि किसान भाई आज तक जो पौधरोपण का कार्य करते थे, पहले नर्सरी तैयार करते थे, फिर पडलिंग करते थे, फिर पौध की रोपाई करते थे। इसमें काफ़ी लेबर लगती थी और पानी की मात्रा भी काफ़ी लगती है पडलिंग करते हुए। जैसा कि जानते हैं सभी, जो डायरेक्ट सोइंग है सीड का, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। केवल आपको एक हल्की सिंचाई करके उचित नमी मेंटेन करनी होती है मिट्टी में, जिससे कि वो सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाए।
दूसरी सावधानी ये भी रखनी पड़ती है कि जो आप बीज की बिजाई कर रहे हैं वो पानी में भिगोया हुआ हो, लगभग 10-12 घंटे या ज़्यादा भी 20 घंटे भी पूरी रात भिगो करके अगले दिन इसका उपचार करके आप उसको बिजाई कर सकते हैं, तो आसानी से इसका जमाव हो जाता है। आजकल इस पद्धति का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसमें किसान की बचत होती है, एक तो पानी की बचत होती है, पोषक तत्वों की बचत होती है, और दूसरा जो रोपाई होती है, सीडलिंग की जो रोपाई करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लेबर के रूप में आ जाता है किसान को, जो एक काफ़ी बचत का काम हो सकता है अगर सीड सोइंग डायरेक्टली करें तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ये एक नई टेक्निक है और इस आधार पर जहां पर पानी की कमी है उस जगह पर इस पद्धति का इस्तेमाल करें, और इस पद्धति में ऐसी गलतफहमी में ना रहें कि पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार बिल्कुल कम नहीं होगी। आपकी जो ओवरऑल इनकम है, जो फ़ायदा है उस फसल में उतनी ही प्राप्त हो जाएगी आपको, और फसल की क्वालिटी भी इसमें अच्छी देखी गई है। मैं डॉक्टर करम सिंह ठाकुर, प्रोफेसर माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब, मैं एक आज अपने यहाँ पंजाब के किसान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो है खरीफ का सीज़न आ रहा है, जिसमें पंजाब में की जो मुख्य खरीफ का जो फसल है वो धान है। इसमें पंजाब में अभी तक जो है धान की खेती जो है मुख्यतः जो है ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करी जाती है, जिसमें नर्सरी में इसकी पौध उगाते हैं और बाद में उसको जब वो लगभग 1 महीने या 1.5 महीने की हो जाती है तो उसको खेतों में जो है उसकी रुपाई की जाती है। इस विधि द्वारा जो है किसान की जो लागत जो है वो दिन प्रतिदिन हर सीज़न में जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें मुख्य जो है जैसे पानी का जो इसमें जो कंजम्पशन है वो बहुत अधिक है ट्रांसप्लांटेड विधि से। तो इसमें 2-3 और विधि हैं, जैसे एक डायरेक्ट सीडिंग जिसको हम मेथड बोलते हैं, एक स्प्राउटेड मेथड भी है, लुंग मेथड जिसको कहते हैं, और एक हाल ही में एक बहुत अच्छा एक और जो है राइस इंटेंसिफिकेशन जो है एक SRI मेथड जो है वो का भी निजात हुआ है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा सा अपना एरिया जो है वो डाइवर्ट करें, जो कुछ डायरेक्ट सीडिंग करें, कुछ SRI मेथड से लगाएं, कुछ ट्रांसप्लांटिंग भी करें, और तीनों मेथड्स से जब लगाएंगे तो देखेंगे कि किसकी लागत जो है कम है और किस में जो है शुद्ध लाभ जो है ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, और किस मेथड से जो है उनके इनपुट्स की भी जो है बचत हो रही है, जैसे चाहे पानी की है चाहे खाद की है। नेचुरली आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसप्लांटेड मेथड है उसमें न्यूट्रिएंट्स के लॉसेस भी ज़्यादा हैं, और जो हमारा डायरेक्ट सीडिंग होती है इसमें न्यूट्रिएंट के लॉसेस भी कम रहते हैं। इस मेथड से लगाने से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पानी की बचत होती है बहुत सारी, और जैसे बीमारियाँ आती हैं तो बीमारियों का प्रकोप भी कम हो जाता है, इंसेक्ट्स का प्रकोप भी कम हो जाता है। अगर इन विधियों को अपनाएंगे तो उससे उनका और जो हमारा वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है उसकी भी बचत होगी, और एक अच्छी पैदावार भी हो इस फसल की ले सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा, माता गुजरी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर प्लांट प्रोटेक्शन विभाग में कार्यरत हूँ, और आज यहाँ हम कॉलेज के फार्म पे हैं और यहाँ पर सीधी धान की सीधी बिजाई का डेमोस्ट्रेशन लग रहा है। इसमें बीज को सीधा ही बीजा जाता है, और ये जो बीज है इसका पानी का, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि पानी का इसमें सेविंग होती है, बहुत सारा पानी जो है बच जाता है, और कम से कम इसमें जो लेबर है उसका खर्चा भी कम होता है। मैं इसके बावजूद आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे जब आप डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो इसमें बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप भी कम हो जाता है, और इसके ऊपर आपका बहुत सारा जो है खर्चा होता है ना। बहुत सारी दवाइयाँ आपको मार्केट से लेना पड़ती हैं टाइम से, जैसे ब्लास्ट है, फॉल्समट है, राइजोक्टोनिया है,
वो जो बीमारियां हैं इस यहाँ पर बहुत मिनिमम इंसिडेंस उनका होता है। दूसरा ये है कि जब भी आप बीज लगाएं उसको उपचारित ज़रूर कर लें। जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट पंजाब की मेजर प्रॉब्लम है, उसको आप स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम है ना, उसमें पर लीटर के हिसाब से बेट से उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं या पाउडर से भी कर सकते हैं। उसमें कार्बेंडाजिम की जो दवाई है वो 1 ग्राम 1 केजी के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। तो जितनी भी ये बीमारियां आती हैं, चाहे डायरेक्ट सोइंग है या ट्रांसप्लांटिंग में कर रहे हैं आप, या SRI मेथड में कर रहे हैं, तो वो कम होगी और आपका खर्चा जो बाद में होना है, जो आप बाद में जब बीमारियां आ जाएंगी उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे दवाइयों का, तो खर्चा कम होगा। तो इस वक्त जो है ये जो डायरेक्ट सीडिंग, जो सीधा जो बीज की बिजाई मेथड से यहाँ पर कर रहे हैं, इससे आप देखो बहुत सारा आपकी बचत होगी। लेबर है, पानी है, दवाइयाँ हैं, उनका कीड़ों और बीमारियों की वजह से जो प्रोडक्शन कम होगी उसका भी आपकी प्रोडक्शन कम नहीं होगी। तो इस मेथड को आप ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में या यहाँ भी है वो उसको अपनाएं और उससे किसान भाई अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमारे सीनियर प्रोफेसर्स ने बताया कि अगर हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस को यूज़ करेंगे तो उसमें किसान को प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा और साथ साथ में हम पानी का सेविंग कर सकते हैं। और एक जो मेन एक प्रॉब्लम जो आज के समय में एग्रीकल्चर में आ रही है, जो कि लेबर की है, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग की ओर जाते हैं तो लेबर कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अगर डायरेक्ट सीडेड से हम लोग लगाएंगे तो उसको हम बचा सकते हैं। पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब में हमको लगता है कि पानी अभी काफ़ी ज़्यादा है, पर अगर हम आगे चलेंगे तो हर साल हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो इस पानी को बचा के रखना होगा। अदरवाइज़ जो इलाके जहाँ पर हम लोग आगे थोड़ा जाएं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर किसान के पास कोई ऑप्शंस नहीं। तो हमें अगली जनरेशन्स के लिए भी ये पानी बचा के रखना, और उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट सीडेड राइस को यूज़ करना है। डायरेक्ट सीडेड राइस पंजाब में 2010 से ये टेक्नोलॉजी आई। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको प्रमोट किया और हम लोग भी उन्हीं के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं और फार्मर्स को ये अवेयर कर रहे हैं कि वो DSR टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करें। हम फार्मर्स को जो भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में हमारा जो सीड्रिल मशीन है उसको भी हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरी फार्मर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो DSR टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जिससे कि पानी जो है वो काफ़ी हम बचा सकते हैं, लेबर का सेविंग कर सकते हैं और ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, पानी की दिक्कत ਨੂੰ देखते हुए पंजाब ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਰੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੈਰੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਘਮੰਡਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ 40-45 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੀਰੀ ਕੇਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।